Hi everyone, how are you all? A very good afternoon to everyone. I hope everyone is doing good. So, welcome back to my YouTube channel, Maths in Minutes. And as you guys know, just a second. As you guys know that we are covering K-12 segment on my channel Maths and Minutes absolutely free. So if you want to subscribe my channel, do subscribe, do like the videos, and we already have covered rational numbers grade 8, linear equation grade 8, square and square roots grade 8. ठीक है, तो हमने ये 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. टुडे वी आर लाइक हमने ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल से स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में. हम उसी को आगे कवर करेंगे. ठीक है. And if you guys want to follow me on Facebook, you can follow me Maths in Minute. You can also follow me on Instagram with the same username. And that's it. If you like my channel, if you like my videos, do support, do follow, do subscribe, and show your love. ठीक है. So we are studying understanding quadrilaterals. In the last class, we have covered curves, introduction to polygons, types of polygons, regular and irregular polygon, convex and concave polygon. These 5 topics we have covered in the last class. Today we will cover angle sum property of polygon, types of quadrilateral, and some special parallelogram. ठीक है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. चलो, let's start with angle sum property of polygons. So angle sum property of polygon says that as we know किसी भी polygon किसी भी shape में टू एंगल्स होते हैं. टू एंगल्स का मतलब इंटीरियर एंगल एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ पेंटागन, इस पेंटागन में इंटीरियर एंगल्स हैं ये 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 एंड ये. ओके. On the other hand, if the question asks about इस फिगर के exterior angle, so if you extend this line, this is an exterior angle. If you extend this line, this is an exterior angle. If you extend this line, if you extend this line, this and this are exterior angles. Similarly, if you extend this and this line, this and this are exterior angles. If you extend this line, then this and this are exterior angle. If you extend this line and this line, then this and this are exterior angle. तो we can say किसी भी फिगर में हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों होते हैं. तो पहले हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स देख लेते हैं. तो बेसिकली हमें कुछ फिगर्स को तो पता है कि ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है. दैट मींस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक. हमें क्वाड्रिलैटरल का भी पता है. एनी फोर साइडेड फिगर का सम 360 डिग्री होता है. स्क्वायर का सम 360 होता है. पैरेललोग्राम का सम 360 होता है. ट्रेपेजियम का सम 360 होता है. लेकिन व्हाट इफ द नंबर ऑफ साइड्स आर ग्रेटर देन 4? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ 5 साइडेड फिगर, इट इज अ 6 साइडेड फिगर. तब आप सम ऑफ एंगल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? सम ऑफ एंगल मीन्स जैसे ये हमारा पेंटागन था, तो अगर क्वेश्चन कहता है इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो सम क्या आएगा? तो उसके लिए वी आर हैविंग अ फॉर्मूला दैट सेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n minus 2 into 180, वेयर n is number of sides. तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कैलकुलेट कि इस पेंटागन का सम ऑफ ऑल एंगल क्या है. तो यू विल यूज द फॉर्मूला n minus 2 into 180 डिग्रीज. राइट. यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स. ये हमारा पेंटागन है तो इसमें 5 साइड्स हैं. तो n की प्लेस पे वी विल राइट 5 minus 2 into 180. 5 minus 2 is 3. 3 into 180 is 540 डिग्री. दैट मीन्स नो मैटर आपका शेप कौन सा है, क्या शेप है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी शेप का सम ऑफ ऑल एंगल निकाल सकते हैं. एक और देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हेक्सागन है. दिस इज अ हेक्सागन और आपको बताना है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन क्या होता है. तो अगेन यू विल यूज द सेम फॉर्मूला n minus 2 into 180. In this case, n is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is a hexagon. तो n की प्लेस पे 6 minus 2 into 180. So you will say 6 minus 2 is 4 into 180. That means 720 degree is the sum of all angles of this hexagon. ठीक है. अभी इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लो जरा. इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दे आर सेइंग
ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस एंगल। ठीक है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला पहले सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हो, फिर वैल्यू रखोगे और आपको पांचवा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई सम ऑफ इंटीरियर एंगल की। व्हाट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है सेम फॉर्मूले को n से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ पेंटागन, द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज इट्स ईच इंटीरियर एंगल। ठीक, हाँ एक चीज और, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर पॉलीगन पे लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पता है पेंटागन एक रेगुलर पॉलीगन होता है क्योंकि इसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो हम इसमें ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये जो न्यूमरेटर पे लिखा है ये आपको पता है हमारा किसका फॉर्मूला है, सम। अगर आप सम को साइड से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ईच इंटीरियर एंगल क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट क्वेश्चन आपने n-2 इंटू 180 की वैल्यू निकाली थी पेंटागन में 540। ठीक है, हम डायरेक्टली n-2 इंटू 180 की जगह पर अगर 540 लिखें डिवाइडेड बाय n इज 5 साइडेड, इट इज अ 5 साइडेड फिगर, सो 5 1 is 5, 5 8 is 40, दैट मीन्स इसका ईच इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री। एंड रिमेंबर गाइज ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आप सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स में लगा सकते हैं, ओनली अप्लाइड फॉर रेगुलर पॉलीगन्स। ओके एवरीवन, ठीक है, सिंपली अगर आपको सम निकालना है तो सिर्फ n-2 इंटू 180 लगा दीजिएगा, अगर आपको निकालना है कि ईच इंटीरियर एंगल क्या है तो उसी सम को आप साइड से डिवाइड कर देंगे बस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन ईच एक्सटीरियर। अच्छा नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन। अभी हमने क्वेश्चन किया हेक्सागन इज अ 6 साइडेड फिगर, तो बेसिकली वी नो n-2 into 180 degree is the formula for sum of interior angle, n is 6 because it is a hexagon into 180, 6 minus 2 is 4 into 180, that is 720 degree. That means sum of all angles of this hexagon is 720 degrees. आई होप इट इज क्लियर, ये तो सेम ही है लास्ट क्वेश्चन की तरह। नाउ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 1260, हाउ मेनी साइड डज इट हैव। अच्छा दिस टाइम द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट साइड्स, n की वैल्यू पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा हमें पता है ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। इन दिस क्वेश्चन सम इज ऑलरेडी गिव, सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। इन दिस क्वेश्चन सम इज ऑलरेडी गिवन एज 1260, तो सम की प्लेस पे यू विल राइट 1260, n की वैल्यू हमें पता नहीं है n-2। नाउ ये मल्टीप्लाई में है 180, लेफ्ट में जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 7 is 126. Okay, now -2 will move to left hand side, it will be +2, that means n is equal to 9. It is a 9-sided figure, or you can say it is nonagon. ठीक है, कुछ नहीं करना है, सम हमें पहले से दिया है 180 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करोगे 7 आएगा, -2 लेफ्ट में जाएगा प्लस हो जाएगा और n की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू गाइज विल गेट द क्वेश्चंस ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल भी देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर 360 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए n से डिवाइड कर दो, सेम एज द प्रीवियस वन। एंड अगेन हियर वी कैन से पहले वाला जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सब तरह के पॉलीगन पे एप्लीकेबल है, बट ये ईच वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो they are saying the exterior angle of a regular polygon is 60 degree, how many sides does it have? So they are saying each, we know sum of exterior angle is 360 degree, right? They are saying sum of 360, hold on guys, हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला इज
360 अपॉन n। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन इन्होंने एक्सटीरियर एंगल पहले से ही दे दिया है कि एक एक्सटीरियर एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो ईच की प्लेस पे यू विल राइट 60 इज इक्वल टू 360 अपॉन n। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये n इधर चला जाएगा, ये 60 इधर आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, n की वैल्यू इज 6। So here we got four important formulas. Sum of interior angle n minus 2 into 180. Each interior angle n minus 2 into 180 upon n. Sum of exterior angle 360 degree. Each exterior angle is 360 upon n. So with this formula, it is more than enough कि आप सारे questions कर पाओगे. ठीक है, चलो एंगल सम प्रॉपर्टी हो गए, इसके और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में ले लेंगे। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स देख लेते हैं। दिस इज अ टेबल, इन दिस ऑल टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलैटरल्स आर मेंशन्ड। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलैटरल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर है जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। बेसिकली अगर हम यहाँ देखें और अगर हम ट्रेपेजियम की बात कर लें तो ट्रेपेजियम का हमारा क्वालिटी होता है कि दिस इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम मीन्स सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होगा, तो ट्रेपेजियम के लिए हम कह सकते हैं वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात करें तो बोथ द ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दैट मीन्स इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, इसका ये पेयर इससे पैरेलल होगा, ये पेयर इससे पैरेलल होगा, और ये सिर्फ पैरेलल ही नहीं इक्वल भी होते हैं। दैट मीन्स इफ दिस इज 4 दिस इज आल्सो 4, इफ दिस इज 3 दिस इज आल्सो 3। ठीक है, तो वी कैन से पैरेललोग्राम के ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल एंड इक्वल। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सबको ही पता है, रेक्टेंगल का क्वालिटी है कि इसके ऑपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, और इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई पूछे हमें पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल्स को 90 डिग्री कर दे तो फिर वो पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस का क्वालिटी है उसका सारा साइड इक्वल होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। अभी इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, स्क्वायर की बात भी हम आगे करेंगे जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे। पैरेललोग्राम में जो एक टॉपिक है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, इस पे हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल को। ठीक है, एंड काइट का क्वालिटी होता है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल the kite का figure will look like this. That means this and this will be equal, this and this will be equal. If this is 4, this will also be 4. If this is 5, this will also be 5. ठीक है, ये हमारा kite है। चलो अभी पैरेललोग्राम हमारे सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थोड़ा डीप में देख लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ये हम सबको पता है, दैट सेज ये पेयर पैरेलल और इक्वल होगा, ये पेयर और ये पेयर पैरेलल और इक्वल होगा। ये तो हम दोनों ने देख लिया। ठीक, अभी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव मींस टू पैरेलल लाइंस के बीच में ये जो ट्रांसवर्सल है, देन ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, दे आर सेइंग इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सो ये और ये सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स यू कैन से एंगल ए प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये और ये सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो से एंगल ए प्लस बी का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये और ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मीन्स यू कैन सी एंगल बी प्लस एंगल सी का सम भी 180 होगा। सिमिलरली ये और ये भी सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मीन्स एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी होती है कि इट्स कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। द लास्ट वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा. इफ दिस इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. ये और ये इक्वल होगा. इफ दिस इज 120, सो दिस विल बी 120. ठीक है, ये भी एक क्वालिटी है पैरेललोग्राम की. एंड देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, द लास्ट प्रॉपर्टी. बाइसेक्ट का मतलब जिसको नहीं पता है, लेट मी टेल यू. बाइसेक्ट मीन्स इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, ये डायगोनल्स हो गए, ये हो गया ए बी सी एंड डी. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इफ टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट विल डिवाइड द डायगोनल फ्रॉम द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मीन्स अगर ए सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और बी डी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे. ए मतलब ए ओ मिड पॉइंट पे आ जाएगा, 8 का हाफ 4 और ओसी भी मिड पॉइंट पे 4, 4 प्लस 4 हाफ 8, सॉरी. तो मतलब ये अगर ये मिड पॉइंट से डिवाइड करेगा तो जो डायगोनल्स होंगे उनका मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स अगर ये हमारा बी डी 6 था तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा. ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब सबको क्लियर हो गया. ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ. अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो अगर ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये ओ ए. अगर हम कहेंगे ए सी एंड बी डी आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स ओ ए एंड ओ सी विल बी इक्वल, ओ बी एंड ओ डी विल बी इक्वल. ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, ओके. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हो गए. सम स्पेशल पैरेललोग्राम मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास में पिक कर लेते हैं. द क्लास इज गेटिंग एक्सटेंडेड. तो ये सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स हम कल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और इसी क्लास के बाद अगर हो पाएगा, कितना कंटेंट बचा है, थोड़ा ही सा कंटेंट बचा है, तो हम इसी के बाद अपना प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो गाइस कम अप रेडी. बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज तो बता दी. हाउ मेनी टॉपिक्स वी हैव कवर्ड टुडे? वी हैव कवर्ड एंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. द ओनली टॉपिक दैट इज रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज सम स्पेशल पैरेललोग्राम. इसका ओवरव्यू हम दे देते हैं. इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर की सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ओके, सो गाइस थोड़ा सा पढ़ के आइएगा इसके बारे में. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. आई वांट एवरीवन to watch the video. If you guys love the video, do like them, do subscribe my channel, and this is all. See you guys in the next class. Bye bye, take care, have a good day. Bye bye.